Assalamu alaikum, sir. My name is Muhammad Saim. I'm studying in class pre-9th B in Thal Public School and Inter College 22 M. Shah. Could you please explain the role of liver in our body? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, Saim. You want to understand the role of liver. Before we understand the functions and role of liver in our body, I think it's better that we should first understand what is a liver. How does it look like? Where is it located? What kind of surfaces does it have? And who are its neighbors? Once you know the answer to all these questions, it will become easy for you to understand the role of the liver. So, therefore, let me answer these questions first. तो liver क्या होता है? Liver is the largest solid organ in our body. The skin is the largest organ overall, but the largest solid organ is the liver. Now, what is its color? Its color is dark reddish brown. You must have seen it. And what is its size? Its size is around the size of a small football. You can say American football. American football is smaller in size. And its weight is approximately 1.5 kilograms. And then is its texture. Texture means how does it feel like when you touch it? How does it feel like? So it feels like a rubber or a sponge. It feels rubbery and spongy. You must have touched the liver of some animal. कम से कम बकरा ईद, कुर्बानी की ईद पे तो आपने वो जिगर देखा ही होगा ना, बड़ा रबरी और स्पॉन्जी होता है. ठीक है, तो उसके बाद ये देखते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है. वेल, इट इज triangular shape. It is broader on the right side, and as you go towards left, it tapers and its left lobe is triangular in shape. So इसकी शेप जो होती है बिल्कुल आप ये समझ लें कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है 90 डिग्री की, उस तरह की शेप इसकी होती है. अच्छा, where is it located? It is located on the right side of your body. On the right side of your body. यहां पे ये located होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इसकी सरफेसेस किस तरह की होती हैं. यस, it has two surfaces. One is called diaphragmatic surface and the other is called visceral surface. जो टॉप और फ्रंट वाली सरफेस है ना लिवर की, टॉप एंड फ्रंट, उसको कहते हैं डायाफ्रामेटिक. इसलिए कि उसके ऊपर डायाफ्राम होता है, और डायाफ्राम एक ऐसा मसल है which divides your abdomen and chest. That is a division between chest and abdomen, and it helps you breathe also. ये एक मसल होता है. तो ये इसके चूंकि नीचे होता है, तो ये जो ऊपर वाली इसकी सरफेस है उसको हम कहते हैं डायाफ्रामेटिक सरफेस. और विसरल सरफेस इज बैक एंड बॉटम. लिवर के बैक और बॉटम वाली सरफेस जो है उसको विसरल सरफेस कहते हैं. ठीक, अब उसके बाद ये देखते हैं कि यस, इसकी अगर आप गौर से देखें तो इसके सेक्शंस होते हैं जिनको हम लोब्स कहते हैं. मेन सेक्शंस इसके दो होते हैं, टू लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब.
अच्छा, जो राइट लोब होता है दैट इज द लार्जेस्ट लोब एंड इट मेक्स मोस्ट ऑफ द लिवर, और जो लेफ्ट लोब होता है इट इज स्मॉल लोब and it extends across the midline of your body and it sits on the stomach. यहां तक जाता है, स्टमक तक, लेफ्ट लोब जो आपका होता है, एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है। अच्छा, इन दोनों लोब्स के दरमियान इनको कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइड करता है इनको दोनों लोब्स को, वो एक बैंड ऑफ टिश्यूज होता है जिसको हम वो लिगामेंट होता है, फेल्सीफार्म लिगामेंट उसको कहते हैं, फेल्सीफार्म लिगामेंट। ये दोनों लोब्स उससे कनेक्टेड होते हैं, उस लिगामेंट से, उस टिश्यू से। ठीक है। इसके अलावा दो छोटे छोटे लोब और भी होते हैं। एक होता है कॉर्डेट, CAUDATE, कॉर्डेट लोब। ये कॉर्डेट लोब जो होता है इट इज ऑन द बैक साइड ऑफ द लिवर, it wraps on the back side, it wraps the back side of the liver and it is near the spine, backbone के नजदीक होता है ये, it's very small lobe। एक चौथा लोब भी होता है, ये तो कार्डेट है, तीसरा जो था, चौथा जो है उसको कहते हैं क्वाड्रेट, QUADRAT, क्वाड्रेट लोब। इट इज स्क्वायरिश इन शेप, स्क्वायर की शक्ल का होता है, and it is also very small and it is only visible if you lift the liver up। आप लिवर ऊपर उठाएंगे तो नीचे से ये नजर आएगा आपको क्वाड्रेट लोब जो है। तो ये चार लोब, दो यूजुअली आपने पढ़ा होगा दो हैं, मगर जब आप एनाटॉमिकली क्लोजली देखेंगे तो आपको चार लोब नजर आएंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सरफेसेस जो हैं क्या वो स्मूथ हैं, रफ हैं, उनमें क्या कोई बम्प्स बने हुए हैं, कोई ग्रूव्स बने हुए हैं, कोई इंप्रेशंस, कोई मोल्ड्स बने हुए हैं कि नहीं बने। अच्छा, जो इसकी अपर सरफेस है लिवर की, दैट अपर एंड फ्रंट सरफेस, दैट इज वेरी स्मूथ। There is no groove, no bolt, no bumps, nothing। क्यों? क्योंकि ये जो आपका डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम जो है ना, ये इस तरह कर्व्ड होता है, डोम शेप, डोम जैसे गुंबद नहीं होता, इस तरह होता है डायाफ्राम। और ये जो राइट साइड वाला आपका लोब है लिवर का, इसकी इसका जो टॉप है दैट इज कर्व्ड अपवर्ड, कन्वेक्स शेप्ड होता है, कन्वेक्स शेप्ड। और ये इट एग्जैक्टली फिट्स इन द डायाफ्राम, राइट साइड डायाफ्राम नहीं है जो राइट साइड वाला डायाफ्राम, उसमें ये एग्जैक्टली फिट हो जाता है, ये वाला आपका लोब जो है, राइट साइड वाला लोब। तो ये उसके साथ चूंकि हर वक्त रब करता रहता है, जो ही आप सांस लेते हैं, व्हेन यू ब्रीथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ, जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो इस डायाफ्राम के ऊपर राइट लंग पड़ा है, वो राइट लंग जब भर जाता है एयर से तो वो प्रेशर डालता है डायाफ्राम के ऊपर, तो डायाफ्राम जो डोम शेप्ड है वो सीधा हो जाता है। जब वो सीधा हो जाता है तो नीचे पड़ा हुआ लिवर, तो वो लिवर के ऊपर प्रेशर डालता है। तो इस तरह वो रब करते रहते हैं, हर वक्त रगड़ पड़ती रहती है, इसलिए वो स्मूथ रहता है। तो अपर साइड और फ्रंट साइड जो आपकी जो सरफेस है लिवर की, ये स्मूथ है बिल्कुल। मगर जो इसकी बाकी की साइड्स हैं वो जरा देखते हैं, नीचे वाली साइड जो है या बैक साइड है वो क्या स्मूथ है या कोई उसमें कोई ग्रूव्स या कोई इंप्रेशंस, मोल्ड्स कुछ हैं। नीचे आपके जो इंफीरियर, इसको कहते हैं इंफीरियर साइड, और ऊपर वाली साइड कहते हैं सुपीरियर साइड। सुपीरियर साइड तो मैंने आपको बता दिया स्मूथ थी। इंफीरियर साइड में यहां पे राइट किडनी होता है, राइट किडनी। राइट किडनी जो होता है वो जब ये लिवर उसके ऊपर, व्हेन इट सिट्स ऑन द राइट किडनी,
तो राइट किडनी इसके अंदर इंडेंट पैदा कर देता है, एक डीप बाउल की तरह लिवर के अंदर, क्योंकि लिवर स्पॉन्जी होता है, तो किडनी उसके अंदर घुस जाता है। तकरीबन हाफ ऑफ द किडनी इज कवर्ड बाय योर लिवर। आधा किडनी तो नजर ही नहीं आता, लिवर ने कवर किया होता है। तो एक तो वो इंडेंट बन गया, इंप्रेशन बन गया, उसको रीनल इंप्रेशन कहते हैं। रीनल जहां भी लफ्ज आएगा इट विल रेफर टू किडनी, तो रीनल इंप्रेशन उसको कहते हैं। उसके बाद आपके यहां पे जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये एक होता है असेंडिंग कोलन, ये यहां से ऊपर चढ़ती है, यहां से 90 डिग्री का एंगल बना के ऐसे जाती है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ये जो 90 डिग्री का एंगल यहां से बनाती है, ये जो कोना है, ये इसलिए बनाती है कि ये लिवर इसको ऊपर जाने नहीं देता, ठीक है। तो इसको हिपैटिक बेंड ऑफ द कोलन भी कहते हैं। हिपैटिक लफ्ज जहां भी आएगा इट विल रेफर टू किडनी, कि ये किडनी की वजह से इसमें बेंड है। तो यहां पे भी आपको एक इंप्रेशन नजर आएगा नीचे किडनी के ऊपर, जिसको आप कोलिक इंप्रेशन कहते हैं। इसको तो रीनल इंप्रेशन कहते थे ना किडनी वाले को, ये कोलन की वजह से है ना, इसलिए इसको कहते हैं। ये किडनी के ऊपर अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको इंप्रेशन नजर आएगा, दैट इज कोलिक इंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे इधर, तो ये आपका जो नीचे है स्टमक और ड्यूडेनम। ये जो ड्यूडेनम है, आपको पता है ड्यूडेनम आपने देखी होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सी शेप्ड होती है, सी इस तरह कर्व होती है इसकी, सी शेप, ठीक है। तो जब उसके साथ जाके टच करता है लिवर का लेफ्ट लोब, तो उसके ऊपर जो इंप्रेशन बनता है वो सी शेप्ड इंप्रेशन बनता है। इसी तरह इस तरफ, अच्छा, इसको ड्यूडेनल इंप्रेशन कहते हैं, ड्यूडेनम की वजह से बनता है ना ड्यूडेनल इंप्रेशन। फिर यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो लेफ्ट लोब है, व्हेन इट सिट्स ऑन द स्टमक, तो वहां पे एक बहुत बड़ी कर्व बनती है, वो स्टमक जो है आपका, वो आपके लिवर के अंदर, क्योंकि लिवर फ्लफी और इट इज स्पॉन्जी एंड रबरी, तो जब ये ऊपर बैठता है तो वो अंदर आ जाता है आपका स्टमक, तो वहां पे ये इस तरह एक कर्व, डीप कर्व यहां पे बन जाती है, और इसको कहते हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन। तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ड्यूडिनल इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन और कोलिक इंप्रेशन। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इफ यू गो टू पोस्टीरियर, ये तो नीचे था ना, बैक साइड पे जाएं, तो बैक साइड पे जो ईसोफेगस है, आपको पता है ईसोफेगस फूड पाइप, जब आप खुराक खाते हैं जिस नाली से जाता है, वो ईसोफेगस है। ये ईसोफेगस बैक साइड पे आता है। जब ये बैक साइड पे आता है तो ये जो मैंने आपको बताया था ना कि कॉर्डेट लोब, ये कॉर्डेट लोब और लेफ्ट लोब के बिल्कुल दरमियान में तकरीबन 1 इंच लेंथ ये उसके साथ टच करता है लिवर के साथ, बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द लेफ्ट लोब एंड कॉर्डेट लोब, वहां पे। तो वहां पे ये एक इंप्रेशन बनाता है, वो लिवर को आप टच करेंगे तो इंप्रेशन नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड ईसोफेजियल इंप्रेशन। एक और है, आपने इंफीरियर वेना केवा का नाम सुना होगा। इंफीरियर वेना केवा एक लार्ज वेन है जो बिल्कुल हार्ट के नजदीक जाकर खुलती है। जो लोअर बॉडी है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सारा उसके जरिए फिर हार्ट में एंटर होता है। तो वो इंफीरियर वेना केवा जो है, एक्चुअली दैट इज मर्ज इनसाइड योर लिवर, वो लिवर के अंदर मर्ज होती है। तो उसने कोई इंप्रेशन नहीं, बड़ा डीप ग्रूव बनाया हुआ होता है अंदर लिवर के, वो अगर आप देखेंगे तो वो इनसाइड उसके वो होती है। तो दैट इज इंफीरियर वीना केवा ग्रूव, उसको कहते हैं इंफीरियर वीना केवा ग्रूव। तो ये कुछ बम्प्स या ग्रूव्स या मोल्ड्स आप कह लें, इंप्रेशंस कह लें, ये आपके लिवर में आपको नजर आएंगे जो मैंने आपको बताया। हाँ, आपकी जो अपर सरफेस है, जो
जो सुपीरियर है और जो एंटीरियर है लिवर का वो स्मूथ होगा। ठीक, अब हम चलते हैं इसके नेबर्स की तरफ कि जो आपका लिवर है जो राइट साइड ऑफ योर बॉडी, इसके नेबर्स कौन कौन से। अच्छा देखें, 6 साइड हो सकती हैं। एक तो फ्रंट साइड होगी, इसको कहते हैं एंटीरियर, एन से एंटीरियर, और एक बैक साइड होती है, बायोलॉजिकली उसको कहते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, और एक अप, रूफ अप, उसको कहते हैं सुपीरियर, और एक उसका फ्लोर डाउन, उसको कहते हैं इंफीरियर, और एक बिल्कुल ये राइट साइड, उसको कहते हैं लेटरल, और एक ये लेफ्ट साइड, उसको भी लेटरल कहते हैं, मगर यहां पे हम उसको मीडियल भी कह सकते हैं, क्योंकि दैट लेफ्ट लोब इट एक्सटेंड्स अक्रॉस द मिडल लाइन ऑफ योर बॉडी, तो इसलिए इसको मीडियल भी कह सकते हैं इस साइड को। तो अब हम देखते हैं कि इसके नेबर, वैसे मैंने गिने हैं, देयर आर 15 नेबर्स। अब मैं आपको गिनवाता हूं। सबसे पहले जरा चलें सुपीरियर पे, चलें ऊपर। इसके ऊपर क्या है, मैंने बताया था डायाफ्राम है। अच्छा, जो डायाफ्राम है उसके साथ बिल्कुल ये टक कर रहा है ऊपर, तो डायाफ्राम के ऊपर यहां पे राइट लंग पड़ा है, राइट लंग, तो यहां पे हार्ट है, वो हार्ट भी डायाफ्राम के ऊपर है और उसका भी प्रेशर डायाफ्राम के ऊपर जाता है। ये यहाँ पे जो हार्ट, ये जो हम कहते हैं ना हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है, हार्ट लेफ्ट साइड पे नहीं होता, हार्ट इज राइट इन द मिडल ऑफ टू लंग्स, ये बिल्कुल इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, यहाँ पे है ओब्लिकली, इट्स प्लेस्ड ओब्लिकली, टिल्टेड ऐसे होता है। ठीक है, तो ये 3 तो ये हो गए ऊपर, डायाफ्राम, हार्ट एंड लंग। सुपीरियर अगर इसका साइड हम देखें, अब आ जाए इंफीरियर साइड पे। इंफीरियर साइड पे सबसे नीचे क्या है, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर, पित्ता जिसको आप कहते हैं वो। उसके बाद फिर राइट किडनी, राइट किडनी के बाद क्या था, कोलन था, वो जो बैंड था कोलन का वो था। ठीक है, फिर आप इधर आ जाएं, तो यहां पे क्या था, ड्यूडिनम थी, ड्यूडिनम, फिर क्या था, स्टमक था, और फिर अब आप पोस्टीरियर पे चले जाएं, पोस्टीरियर पे जाएंगे तो स्पाइन, रीढ़ की हड्डी है, और क्या है, इसोफेगस है, और क्या है, वीना केवा है। तो ये सारे इसके नेबर्स हैं। तो ये आपने देखा कि इसके सुपीरियर, इंफीरियर, हाँ लेटरल साइड जो राइट साइड रह गई है वो रिब केज, रिब केज, ये जो रिब्स हैं आपकी, जो ये हड्डियां हैं रिब्स, इनमें 7th रिब से लेके 11th रिब तक जो रिब केज है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो राइट साइड पे वो है, लेटरल साइड पे, और एब्डोमिनल वॉल, आपका एब्डोमेन जो है इसकी दीवार वो भी इसकी राइट साइड पे है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे तो आपने देख लिया था कि ड्यूडिनम है और क्या है, स्टमक है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो ये थे इसके नेबर्स। तो यहां तक हमने इसको देख लिया कि इसका आउटवर्डली कैसा लगता है और इसकी शेप कैसी है, इसका वजन कितना है, ये सारा हमने देख लिया। साइम एक स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। मैंने कहा एक जगह पे कि हिपैटिक लफ्ज जहां भी आएगा तो दैट विल रेफर टू किडनी, नहीं, दैट विल रेफर टू लिवर। वो गलती से मैं 1-2 दफा ये कह गया कि दैट विल रेफर टू किडनी। हिपैटिक जहां भी वर्ड आएगा उसका मतलब लिवर होगा, क्योंकि हिपैट जो है ये ग्रीक वर्ड है, ये लिवर को कहते हैं। जैसे हेपेटाइटिस, जब लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, आइटिस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, तो हिपैट, लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है तो वो हेपेटाइटिस डिजीज होती है। जैसे हिपैटिक वेन है, जैसे हिपैटिक डक्ट है, तो ये सब लिवर से मुतल्लिका होंगी। तो हिपैटिक वर्ड जहां भी आएगा तो ये इट विल रेफर टू लिवर, नॉट किडनी। ये मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता था। एक मैंने कहा था कि आई हैव काउंटेड देयर अबाउट 15 नेबरिंग ऑर्गन्स ऑफ लिवर। एक मैं भूल गया था, मैंने 14 बताए आपको। एक अब मेरे जेहन में आया है
वो है राइट एड्रीनल ग्लैंड्स। राइट एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो राइट किडनी के ऊपर होता है। किडनी के टॉप पे एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रीनल ग्लैंड है, ये भी उसका नेबर है लिवर का। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अगला स्टेप, अभी भी मैं लिवर के रोल पे नहीं आ रहा, क्योंकि लिवर अपना फंक्शन उस वक्त शुरू करेगा जब कुछ सब्सटेंसेस उसके पास जाएंगे, तो वो उन सब्सटेंसेस को प्रोसेस करेगा, कुछ चीजें बिल्ड करेगा, कुछ चीजें रिमूव करेगा। उसके जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, देखा फिर हेपेटोसाइट्स, साइट्स CYTE साइट सेल को कहते हैं, और हिपैटो वही लिवर से, लिवर के सेल्स को हिपैटोसाइट्स कहेंगे। तो इसलिए पहले मैं ये देखूं कि what are those things which enter the liver, and then liver builds new things, processes them, and removes certain uh, things which are not useful for the body. तो देखते हैं कि ये लिवर के अंदर कौन से सब्सटेंसेस जाते हैं और कहां से जाते हैं। अच्छा, लिवर के अंदर सिर्फ 4 ऑर्गन्स से ब्लड जाता है, वही सब्सटेंसेस लेके जाता है। स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक। यहां से ब्लड जो है वो जाएगा लिवर में, और फिर लिवर से आगे जाएगा इंफीरियर वेना केवा में, और फिर हार्ट में चला जाएगा। और जिस वेन से ये लिवर में एंटर होगा उसको हम पोर्टल वेन कहेंगे। यानी स्प्लीन से और पैंक्रियास से एक वेन आएगी, उसको स्प्लीनिक वेन कहेंगे। वो लेके आएगी कुछ सब्सटेंसेस स्प्लीन से और पैंक्रियास से। फिर जो वेन स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से, कोलन से लेके जाएगी सब्सटेंसेस, जो ब्लड वहां से जाएगा उसको कहेंगे सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। अच्छा, एक वेन वैसे और भी होती है जो कोलन से ही निकलती है। कोलन से 2 वेन्स निकलती हैं। कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना, वो इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन कहते हैं, मगर वो इसका सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन का पार्ट नहीं बनती। वो पहले ही जो स्प्लीनिक वेन आती है उसके अंदर एंटर हो जाती है, उसका पार्ट बन जाती है। तो ये फिर स्प्लीनिक वेन जो पोर्टल वेन में जाती है, और ये सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन भी पोर्टल वेन में जाती है। अब ये क्या क्या सब्सटेंसेस लेके जाती हैं ये देखते हैं। स्प्लीन, आपको पता है कि स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जब ओल्ड हो जाते हैं, अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, या किसी वजह से बीमार हो जाते हैं, तो स्प्लीन के अंदर इनकी डेथ होती है। जब इनकी डेथ होती है तो ये एक बड़ा की बाई प्रोडक्ट बनता है उस डेथ के नतीजे में, उसको बिलीरूबिन कहते हैं। वो बिलीरूबिन एक ऐसा पिगमेंट होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, एक तो वो बनता है। एक उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो हैं ये डिजीज से लड़ाई करते हैं, दे फाइट द डिजीज। तो वहां से तो ब्लड ये 2 चीजें कलेक्ट करेगा, यानी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं जो डिजीज से फाइट करते हैं, और बिलीरूबिन जो कि बाई प्रोडक्ट है रेड ब्लड सेल्स के की डेथ के रिजल्ट में बना है। फिर स्प्लीन से ये क्या कलेक्ट करेगा ब्लड? स्प्लीन से सॉरी, स्प्लीन तो मैंने बता दिया ना। पैंक्रियास से क्या कलेक्ट करेगा? पैंक्रियास से ये 2 हार्मोन्स कलेक्ट करेगा, एक ग्लूकागॉन और एक इंसुलिन। तो 2 इसने चीजें उठा ली वहां से, और 2 ही उठा ली स्प्लीन से। फिर ये स्प्लीनिक वेन
आगे और फिर अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक से। आपको पता है कि आप 3 तरह की डाइट्स जो है उनको डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं तो उसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट, सिंपलेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और फिर बाद में सेल्स में जाके रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल होती है उससे, वो ग्लूकोज होता है। अच्छा, तो ये एक तो ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है ये ग्लूकोज कलेक्ट करेगी, ब्लड वहां से ग्लूकोज कलेक्ट करेगा। स्टमक में भी कुछ ग्लूकोज बनता है। आपको पता है कुछ ग्लूकोज तो आपके मुंह में भी बन जाता है जब आप स्टार्च खाते हैं, तो वो जो सलाइवरी माइलेज होता है उससे भी बन जाता है, और बाकी जो है आपकी ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। ड्यूडेनम में आके फिर वो आपको पता है कि पेंक्रियाज से एंजाइम्स आते हैं, लाइपेज वगैरह, अमाइलेज वगैरह। अच्छा, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज के बाद ये कार्बोहाइड्रेट से बन गया। अब आपने फर्ज करें मीट खाया है, फिश खाई है, या इवन पल्सेस डाले, उनमें भी प्रोटीन्स होते हैं, यानी आपने प्रोटीन्स खाए। अब प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट होते हैं तो प्रोटीएजेस जो एंजाइम्स उनके ऊपर करते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन वगैरह, तो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट जो डाइजेस्टेबल, एब्जॉर्बेबल इन द ब्लड सब्सटेंस बना था वो ग्लूकोज था। जो प्रोटीन्स का बना है वो अमाइनो एसिड है, तो वहां से ब्लड अमाइनो एसिड को भी पिकअप कर लेगा। फिर आते हैं आपके फैट्स। जब फैट्स डाइजेस्ट होते हैं, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फैट्स जब डाइजेस्ट होते हैं तो इनके जो हम जो खाते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स फिर उनको ब्रेक डाउन होती है, ग्लिसरॉल बनता है जिसको मोनोग्लिसराइड कहते हैं, और फैटी एसिड्स बनते हैं। ये दो चीजें बनती हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अच्छा, फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मॉल चेन फैटी एसिड्स, एक होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। आप ये समझ लें कि एक छोटी साइज के फैटी एसिड है, टाइनी, और एक बड़ी साइज के फैटी एसिड है। छोटी साइज के फैटी एसिड जो है वो तो ब्लड वेसल जो होती है, कैपिलरीज, उनमें एंटर हो जाते हैं। बड़ी साइज वाले नहीं हो सकते, बड़ी साइज वाले उसमें एंटर नहीं हो सकते। तो एक फैटी एसिड तो उठा लिए वहां से ब्लड में, कौन से? स्मॉल चेन फैटी एसिड्स। तो ये 3 चीजें वहां से उठा ली। इसके अलावा और भी ब्लड वहां से बहुत कुछ कलेक्ट करता है। आपने ड्रग्स ली हैं, मेडिसिन ली हैं, तो ओल्ड ड्रग्स जो है वो भी कलेक्ट करेगा। बहुत सारे लोग अल्कोहल यूज करते हैं, शराब यूज करते हैं, वो भी वहां से कलेक्ट करेगा, वो अल्कोहल भी। टॉक्सिन्स, कुछ ऐसे जहरीले मादे, जहरीले इस तरह है कि नहीं, ये जिससे आपकी डेथ हो जाती है, जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते, बॉडी को नुकसान दे सकते हैं, खुराक के साथ आपके बॉडी में चले जाते हैं, उनको वो कलेक्ट करता है। फिर कुछ जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, आपकी खुराक के साथ, आपकी फूड के साथ जाते हैं, उनको भी वो कलेक्ट करता है। तो ये सारा कुछ उसने वहां से कलेक्ट कर लिया, आपकी गट से। क्या क्या? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, स्मॉल चेन फैटी एसिड्स, जर्म्स, टॉक्सिन्स, अल्कोहल, बैक्टीरिया एटसेट्रा। ठीक है, और बाकी 4 चीजें पीछे से वो स्प्लीन से और उससे लेके आया था पेंक्रियास। अब ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं पोर्टल वेन में। अच्छा, ये पोर्टल वेन है, ये वाहिद एक वेन है जो एंटर होती है आपके लिवर में ब्लड लेके, और ब्लड सिर्फ इन 4 चीजों से आएगा। एक जो गाल ब्लैडर है वहां से भी एक छोटी सी वेन इसमें पोर्टल वेन में जाती है ब्लड लेके, मगर वो सिर्फ वीनस ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसमें सिर्फ जो है ना मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, वो एक तरह का क्लीन ब्लड होता है। रिलेटिवली उसको क्लीन ब्लड कहते हैं, और ये इसको डर्टी ब्लड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो होगा बैक्टीरिया भी है, टॉक्सिन्स भी हैं, इसके अंदर बिलीरूबिन भी है, इस तरह की सारी चीजें। तो ये डर्टी ब्लड है। और वो जो वहां से थोड़ा सा ब्लड वहां से आया है, या तो गाल ब्लैडर से भी एक वेन आती है जिसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, वो भी आती है, सिस्टिक वेन, वो भी इसमें एंटर होती है। और एक जो बाइल डक्ट जो गाल ब्लैडर में आती है उससे निकलती है, उसको भी वो भी, ये दोनों जगह से जो ब्लड उसमें
पोर्टल वेन में जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये क्लीन ब्लड होता है। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हैं वो ब्लड पोर्टल वेन से लेके वहां पे एंटर हो गया। अच्छा, पोर्टल वेन इसको इसलिए कहते हैं कि लफ्ज पोर्टा एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है गेट। ये एक तरह का गेट वे है ना लिवर में, न्यूट्रिएंट्स आपके गए और दूसरी चीजें एंटर हुई हैं, तो इसलिए इसको पोर्टल वेन कहा जाता है। इसको हेपेटिक हेपेटिक वेन्स नहीं कहा, हालांकि इसका लिवर से रिलेशन बनता है, क्योंकि हेपेटिक वेन्स और हैं। हेपेटिक वेन्स वो हैं जो लिवर से बाहर निकलती हैं ब्लड को लेके, ठीक है, और वो इंफीरियर वेना केवा में एंटर होती है। अब ये चीजें अंदर चली गई, अब देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हम ग्लूकोज ले लेते हैं। जब ग्लूकोज अंदर गया तो आपको पता है कि एक पैंक्रियास से एक हार्मोन भी गया था, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जब ग्लूकोज ब्लड में गया, लिवर में गया ब्लड के थ्रू, तो साथ इंसुलिन भी गई। इंसुलिन आपको पता है हार्मोन है, और हार्मोन एक मैसेंजर होता है, वो मैसेज देता है। इंसुलिन ने लिवर को एक मैसेज दिया कि आप इस ग्लूकोज के साथ कोई ट्रीटमेंट करो। अगर तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में सफिशिएंट है आपको एनर्जी देने के लिए, तो फिर तो लिवर उस ग्लूकोज को जो उसके अंदर गया है उसको वो स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब उसको स्टोर करेगा तो वो ग्लाइकोजन बन जाएगा। क्या मतलब? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आपको पता है C6H12O6 होता है, उसकी वो लंबी सी चेन बनाएगा। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल चेन बनाएगा, जोड़ता जाएगा, उसके बाद उसको रैप अप करेगा और एक ग्रैन्यूल, टाइनी सा ग्रैन्यूल बना लेगा। वो टाइनी ग्रैन्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेपेटोसाइट्स जो सेल्स हैं उनके अंदर वो फ्लोट करते रहते हैं सारे। इस तरह नहीं है कि जो ग्लाइकोजन बना है उसका कोई टैंक है लिवर के अंदर और उसमें स्टोर हो जाएगा, नहीं। ग्लाइकोजन तमाम सेल्स में ही स्टोर होता है और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की शक्ल में वो स्टोर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने रोजा रख लिया, इफ यू आर फास्टिंग और इफ यू आर स्टार्विंग, आपको बड़ी भूख लगी हुई है, या यू हैव टेकन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो शुगर्स है वो बड़ी थोड़ी ली हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया है, किसी वजह से बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया, तो फिर जो ग्लूकागॉन एक हार्मोन आया था इन वो उससे पैंक्रियास से, उसने फिर एक मैसेज, वो भी चूंकि हार्मोन है उसने मैसेज देना है, उसने लिवर को मैसेज दिया कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जरूरत है, आप इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करो, इसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाओ और ये ब्लड में थ्रो करो ताकि ब्लड लेके बॉडी में जाए। तो फिर लिवर क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बना देता है और वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं और वहां पे जाके वो रेस्पिरेशन, जाहिर है ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज सेल्स के अंदर फिर वो H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP एनर्जी बनती है, आपको एनर्जी मिल जाती है। ये तो हो गया ग्लूकोज का। अब देखते हैं कि अमाइनो एसिड जो उसने, प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड बने थे, ये तो ग्लूकोज बना था ना कार्बोहाइड्रेट का, जो अमाइनो एसिड उसने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से या कुछ उसमें तो नहीं बनते, स्टमक में तो ये सारे वहीं पे बनते हैं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम में। अच्छा, वहां से जब उसने अमाइनो एसिड उठाए और अमाइनो एसिड लेके आ गया जिगर। अच्छा, ये अमाइनो एसिड का एक प्रॉब्लम है, अमाइनो एसिड स्टोर नहीं हो सकते। अगर तो आपकी बॉडी को जरूरत है तो वो लिवर जो है, जो ब्लड उसमें से निकल के जा रहा है हेपेटिक वेन्स के जरिए, वो उन अमाइनो एसिड्स को आगे भेज देगा कि जाओ बॉडी को तुम्हारी जरूरत है। अगर बॉडी को जरूरत नहीं है, बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन्स काफी मौजूद हैं, आपने बहुत ज्यादा गोश्त खा लिया है, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स आ गए, तो बॉडी को जरूरत नहीं, तो बाकी के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको वो स्टोर नहीं कर सकता लिवर, तो उनको क्या करेगा? उनको ये करेगा, आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये बिल्कुल जिस तरह ग्लूकोज नहीं होता, एक कार्बन स्केलेटन होता है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी होती हैं और उसके साथ ऑक्सीजन होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही होता है ना ग्लूकोज, C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड होता है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, मगर एक चीज फालतू होती है, वो होता है अमाइनो ग्रुप, उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप होता है NH2।
अच्छा, अब ये लिवर क्या करता है, NH2 को ब्रेक कर देता है अमाइनो एसिड से, उसको कहते हैं डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन यानी नाइट्रोजन जो है उसमें से निकाल देनी, NH2 को अलहदा कर देता है। NH2 को जब अमाइनो एसिड से अलहदा करता है तो पीछे क्या बचता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ वही सलूक होता है जो ग्लूकोज के साथ होता है, वो एनर्जी बन जाती है। उसकी ये एनर्जी बना लेता है और खुद ही इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर सेल्स हैं, इनको भी एनर्जी चाहिए, तो उसकी ये एनर्जी बना के इस्तेमाल कर लेता है। और जो NH2 है दैट इज वेरी डेंजरस। NH2 इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक हाइड्रोजन के प्रोटॉन के साथ H के ऊपर प्लस चार्ज, उसके साथ कंबाइन करके अमोनिया गैस बना देता है NH3, विच इज वेरी पॉइजनस गैस जो आपकी डेथ कर सकती है। मगर लिवर बड़ा क्विकली फंक्शन करता है। ये क्या करता है कि उस जो अमोनिया गैस है उसको फौरन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मिलके अमाइनो जो अमोनिया गैस है उसके साथ मिलके यूरिया बना देती है। और यूरिया जो है वो आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, वो यूरिया सेल से बाहर निकलता है और लिवर वो उसको ब्लड में थ्रो कर देता है और ब्लड से बाहर वो निकल के चला जाता है और फिर वो हार्ट में से होता हुआ वापस किडनी में आता है। किडनी जो है वो आपके ब्लड को फिल्टर करता है, जब फिल्टर करता है तो ब्लड को अलग कर देता है, यूरिया अलग कर देता है और वो यूरिया आपकी यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है और आपको जो यूरिन से स्मेल आ रही होती है वो एक्चुअली उस यूरिया की आ रही होती है। उसके बाद तीसरी बात थी फैटी एसिड जो लिवर में गए थे फैट्स से। वो जो फैटी एसिड थे वो स्मॉल चेन फैटी एसिड, वो स्मॉल चेन फैटी एसिड जो है उनसे भी एनर्जी हासिल करता है लिवर, उनको भी लेके जाता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। मगर माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है वो वाला प्रोसेस नहीं होता जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का होता है। तो उससे ये होता है कि उसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, उस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो फैटी एसिड से एनर्जी ATP हासिल हो जाती है, वो ले लेते हैं। मगर अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम है और एनर्जी की जरूरत है तो फिर वो फैटी एसिड्स को फौरी तौर पे कन्वर्ट करता है एक और सब्सटेंस में जिसको कीटोन कहते हैं। अच्छा, ये कीटोन वो चीज है जो रेडिली एनर्जी देता है, जिस तरह ग्लूकोज देता है उसी तरह ये एनर्जी देता है। तो वो ये कीटोन्स को ब्लड के हवाले कर देता है और ब्लड कीटोन्स को लेके फौरन आपके ब्रेन में और मसल में चला जाता है, तो वहां पे से आपकी एनर्जी बन जाती है। तो ये वो चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं डाइट के हवाले से कि जब 3 चीजें आपने खाई। So science, so far we have studied how liver deals with the glucose, amino acids and fatty acids. So now let's go beyond that. What happens to the minerals and vitamins when they enter the liver? Now, let's take the vitamins first. Vitamins are of 2 types, water soluble vitamins and fat soluble vitamins. Water soluble vitamins dissolve in water, they are vitamin B complex and C. And fat soluble vitamins do not dissolve in water, they are vitamin A, D, E, and K. So these water soluble vitamins, they readily are collected by the blood from the intestine, they are absorbed by the blood and they are transported through hepatic portal vein to the liver. They enter the liver. But the other 4 vitamins which are fat soluble, they take a different route. Inside the cells of the intestine, small intestine, those cells are called enterocytes. Like the cells of liver are called hepatocytes, the cells of the intestine are called enterocytes. Now these 4 vitamins, they are wrapped up in a structure called micelle. Micelle, that is a structure made of bile. So bile wraps them up and takes them into the enterocyte.
And then in enterocytes, the other structures which are formed are called chylomicrons. I have dealt with this topic in another video when I taught the how our food is converted into energy. So I have dealt it with in great detail. तो वो वहाँ पे enterocytes के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड दोबारा फिर ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं सेल्स के अंदर, और वो काइलोमाइक्रॉन एक ग्रेन्यूल, टाइनी ग्रेन्यूल में रैप अप हो जाते हैं। फिर वहां से, और ये जो आपके विटामिन्स हैं ए, डी, ई और के, फैट सॉल्युबल, ये भी उसके अंदर एनक्लोज हो जाते हैं, और ये वहां से अब ब्लड में नहीं जा सकते क्योंकि ये इनका साइज बड़ा होता है। तो ये फिर लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। वहां पे इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द ब्लड कैपिलरीज दे एंटर लैक्टियल्स। लैक्टियल्स भी वेसल्स होती हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट हैं, और वहां पे एंटर होके फिर ये लिम्फेटिक वेसल्स में जाके आगे फिर ये दोबारा ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। ये काइलोमाइक्रॉन जो हैं, ये जो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन है ना, यहाँ पे आपकी थोरेसिक डक्ट है, यहां से ये उसमें ब्लड में एंटर हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। तो वहां पे ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर होते हैं तो फिर ये ब्लड में जाके फिर ये जो हिपैटिक आर्टरी है उसके थ्रू लिवर में एंटर होते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि these 4 vitamins and fats, triglycerides, they enter the liver through a different route, that is hepatic artery, not portal vein. तो वहां से ये आ जाते हैं। अब ये क्या लिवर इनके साथ क्या ट्रीटमेंट करता है वो हम देखते हैं। ये जो विटामिन ए है इसको तो लिवर कन्वर्ट कर देता है रेटिनोइक एसिड में या रेटिनल एसिड में। अच्छा, ये एक सब्सटेंस बनाता है रेटिनोइक एसिड, यानी विटामिन ए को रेटिनोइक एसिड बना दिया। अब ये रेटिनोइक एसिड जो है ये एक्चुअली इट मेंटेन्स योर विजन, आपकी विजन को बेहतर करता है रेटिनोइक एसिड, और आपकी स्किन की हेल्थ को भी बेहतर करता है, एंड जीन रेगुलेशन में भी काम देता है, जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो अगला जो है वो है विटामिन डी। विटामिन डी तो आपको पता है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि अगर विटामिन डी की कमी हो तो आपकी बोन्स जो हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, रिकेट्स एक डिजीज है वो लग जाती है। अच्छा, अब विटामिन डी जो है इसको भी लिवर कन्वर्ट कर देता है एक सब्सटेंस में जिसको कैल्सिट्रियोल कहते हैं। ये कैल्सिट्रियोल जो है ये एक्चुअली जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करवाता है आपकी बोन्स में। कैल्शियम इसके बगैर आपकी बोन्स में जा नहीं सकती। अगर कैल्शियम नहीं जाएगी तो फिर आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी और टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये विटामिन डी जो है इसको लिवर कन्वर्ट करेगा कैल्सिट्रियोल में, और कैल्सिट्रियोल जो है दैट विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। फिर है विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई जो है उसको सिर्फ ये स्टोर करता है लिवर और रिलीज करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट आपको पता होगा किसको कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्री रेडिकल्स जो हैं आपकी बॉडी में, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको स्टेबल करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है। अब फ्री रेडिकल एक ऐसा एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है और वो बड़ा हाइपर एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, वो आपकी बॉडी को डैमेज करता है अगर उसको आप स्टेबल नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। तो विटामिन ई जो है वो उसको स्टेबल करता है, जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, ये उसका काम है, क्योंकि ये विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है। फिर है विटामिन के। ये आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में भी। विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में
हेल्प करता है। ये क्या करता है कि वो एंजाइम्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये उन एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके उनको एक्टिवेट करते हैं। एक्चुअली उन एंजाइम को, वो एंजाइम्स इनएक्टिव पड़े होते हैं, कोई कट लग गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो ये विटामिन क्या करेगा, ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा और वो एंजाइम्स एक मैश बना के, जाली सी बना के वो वहां पे पहुंच जाएंगे और वहां पे उसको ब्लड क्लॉटिंग उसकी वहां पे हो जाएगी। तो ये थे फैट सॉल्युबल। अब जो वाटर सॉल्युबल है, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों जो है इनको लिवर स्टोर नहीं करता, बस इनको यूज करता है और अगर एक्सेस है तो वो यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट कर देता है। मगर ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें जो B12 है उसको वो लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है, B12 को सिर्फ, बाकी को नहीं करता। और ये जो दोनों है ना, इनका काम बेसिकली दे हेल्प इन दी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन और नर्व, जो आपकी नर्व्स है ना उनके फंक्शन, ये हेल्प करते हैं दोनों। ठीक है, तो ये तो था आपका कि विटामिन्स जब लिवर में आते हैं तो क्या होता है। अब देखते हैं मिनरल्स, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज है। जब ये आपके लिवर में आते हैं तो फिर लिवर उनको कैसे ट्रीट करता है। अच्छा, लिवर की मिनरल्स के लिए एक बड़ी कॉमन जनरल स्ट्रेटेजी है, ये आप समझ। वो क्या करता है, सबसे पहले तो अपटेक है, ठीक है, ये उनको इंपोर्ट करता है मिनरल्स को फ्रॉम द ब्लड, वो जो आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन है उससे पहले तो इसने इंपोर्ट कर लिया। और ये जो आ रहे होते हैं ना मिनरल्स, ये बेसिकली किसी प्रोटीन के साथ बाइंड करके ही आ रहे होते हैं। जैसे आयरन जो है वो एक प्रोटीन है ट्रांसफेरन, वो ब्लड में उसके साथ ये बाइंड हुआ होता है, वो इसको लेके आती है। तो ये किसी न किसी प्रोटीन के साथ ही आते हैं। अच्छा, जब ये अंदर आ जाते हैं, अपटेक इनकी हो जाती है, तो अगला काम उसका ये है कि वो इनको फिर बाइंड करता है, क्योंकि जब वो जो जो ट्रांसपोर्ट इनको करता है, शैपरन जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसने ट्रांसपोर्ट करके इनको छोड़ दिया, अब ये वहां पे तनहा हो गए। अब अगर इनको फ्री छोड़ दिया जाएगा तो ये डैमेज करेंगे सेल्स का, लिवर का डैमेज करेंगे, इसलिए लिवर फौरी तौर पे बाइंड करता है इनको किसी प्रोटीन के साथ। ठीक है, जैसे कॉपर जो है उसको वो ये बाइंड करेगा, सेरुलोप्लाज्मिन एक प्रोटीन है उसके साथ बाइंड कर देगा, और आयरन फेरेटन के साथ बाइंड कर देगा। ठीक है, तो ये दूसरा काम ये करता है कि फौरी तौर पे उनको बाइंड करता है किसी न किसी प्रोटीन के साथ, ये जो भी मिनरल्स आते हैं। दूसरा स्टेप ये करता है। तीसरा स्टेप है यूटिलाइजेशन का, फिर उनको यूटिलाइज कैसे करता है, फिर ये इनको इनकॉर्पोरेट करता है किसी एंजाइम में या प्रोटीन में जहां पे ये इन्होंने यूज होना होता है। ठीक है, अच्छा, वहां भी जैसे ये जो मैंने कहा ना सेरुलोप्लाज्मिक प्लाज्मिन, ये एक प्रोटीन है, इस पे कॉपर जो है ये इनकॉर्पोरेट होता है इसमें। कॉपर इज लोडेड ऑन दिस प्रोटीन, और ये कॉपर जो है बेसिकली ये जो आयरन मेटाबॉलिज्म है उसमें काम देता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह फिर अगला स्टेप जो है यूटिलाइजेशन के बाद, वो है इनको अब एक्सपोर्ट करना है, बॉडी को जरूरत है, तो इन मिनरल्स को उसने एक्सपोर्ट करना है। अब जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो वो इनको इस तरह नहीं करेगा, फ्री नहीं करेगा, वो जिस तरह ये बाइंड हुए हैं, मसलन जो आपका आयरन है वो इन द शेप ऑफ फेरेटन, फेरेटन वो स्टोर होता है। ठीक है, और ट्रांसफेरन उसको
लेके जाता है। और जो कापर और जिंक है, ये एक मेटालोथायोनीन एक प्रोटीन है, उस शक्ल में ये स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इनको फ्री नहीं छोड़ा जाता, स्टोरेज में भी इनको आपने किसी न किसी प्रोटीन के साथ बाइंड करना है, और जब आपने इनको एक्सपोर्ट करना है टू द ब्लड ताकि वो पूरी बॉडी में लेके जाए जहां जरूरत है, तो फिर भी ये प्रोटीन के साथ ही बाइंड होके ही जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आपकी बॉडी में ये एक्सेस मिनरल्स हैं तो इनको फिर वो एक्सक्रीट कर देगा लिवर, यूजुअली थ्रू बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करेगा। ठीक, ये जनरल स्ट्रेटजी है इसकी लिवर की फॉर मिनरल्स। अच्छा, अब आपने देख लिया कि मिनरल्स को कैसे ट्रीट किया है लिवर ने, और विटामिन्स को कैसे ट्रीट किया है, और पहले आप देख चुके थे कि ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड्स को और फैटी एसिड्स को, ये सब को किस तरीके से ये प्रोसेस करता है, बिल्ड करता है, और उनकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से करता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है आगे। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो ये बनाता है लिवर, जिसको बाइल कहते हैं, और ये जरूर होगा डेफिनेटली, आपने अगर क्वेश्चन पूछा है तो बाइल जरूर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। अच्छा, ये बाइल कैसे बनाता है, और आपको पता है कि ये बाइल जो है ना, ये फैट की डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे आके एंटर होता है और वहां पे इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स की, और जिससे फिर वो डाइजेस्ट होते हैं। अच्छा, ये बाइल बनता कैसे है? अच्छा, लिवर के जो सेल्स हैं, जो हिपेटोसाइट्स हैं, हिपेटोसाइट्स की दो साइड्स, एक साइड जो है उसको कहते हैं साइनोसाइडल साइड, और एक साइड जो है उसको कहते हैं बाइल कैनालिकुलर साइड, कैनालिकुलर साइड। ठीक है, अच्छा, ये जो साइनोसाइडल साइड है, इट फेसेस द ब्लड, ये ब्लड को फेस करती है। अच्छा, अब इस हेपेटोसाइट की ये साइड जो ब्लड को फेस करती है, वहां से ब्लड में से इसके अंदर वाटर भी आता है, बिलीरूबिन भी आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी आता है। ठीक है, अब जब ये सारा ब्लड से इसमें एंटर हो गया सेल में, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसको अब ये वो ऑटोमेटिकली आगे वो मूव नहीं करते, ये एनर्जी सेल यूज करता है और उनको पंप करता है, इन सारी चीजों को जो इसने ब्लड से ली हैं, किसमें, वो जो दूसरी साइड थी सेल की, जिसको मैंने कहा कि बाइल कैनालिकुलर जो साइड है, वो एक्चुअली कैनालिकुलस एक स्मॉल ट्यूब होती है, टाइनी ट्यूब। ठीक है, जिसके अंदर बाइल बनता है। अच्छा, अब उसमें ये चीजें जो है सेल पंप करता है कैनालिकुलस में, कैनालिकुलस एक स्मॉल ट्यूब है। ठीक है, उसमें इसने इनको पंप किया, और कुछ चीजें लाइक बाइल साल्ट्स, वो ये खुद सेल अपने अंदर मैन्युफैक्चर करता है और फिर उनको सिक्रीट करता है इनटू दैट कैनालिकुलस। अच्छा, वो बाइल साल्ट्स कैसे बनाता है? ये वो कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करके पहले बाइल एसिड्स बनाता है, और बाइल एसिड जो है वो फिर एंजाइम्स के साथ मिलके बाइल साल्ट बनते हैं, और फिर बाइल साल्ट जो है वो सिक्रीट होके तो कैनालिकुलस में जाते हैं। अब वहां पे ये बाइल तैयार हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज है? 95% तो वाटर है, बाकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, वो ये बाइल साल्ट्स हैं, जिन्होंने जाके एक्चुअल काम दिखाना है। फिर उसके बाद बिलीरूबिन है, जो आपको पता है ब्लड में आया था, कहां से आया था? स्प्लीन से आया था, बिलीरूबिन है। और उसके बाद फिर ये आपका फास्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं,
सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट है। तो ये सारी चीजें बाइल में मौजूद है। अब वहां से ये कैनालिकुलस जो है, ये तो एक सेल हेपेटोसाइट की ट्यूब है। आगे फिर ये सारी लिंक करती है सारे सेल्स के की कैनालिकुलाई। अब कैनालिकुलस की प्लूरल कैनालिकुलाई। अब कैनालिकुलाई जो है ये आगे ज्वाइन करती जाती हैं, यूनाइट करती जाती हैं और फिर ये मेन हेपेटिक डक्ट बन जाती है। ठीक है, ये मेन हेपेटिक डक्ट जो है वो फिर इसको लेके बाइल को सेल से लिवर से बाहर निकलती है और फिर आगे बाहर निकलती है तो बाइल डक्ट बनती है और ये गाल ब्लैडर में लेके आती है और गाल ब्लैडर उसको कंसंट्रेट करता है, स्टोर करता है और उसके बाद फिर उसको रिलीज करता है कॉमन बाइल डक्ट में और वो उसको ड्यूडिनम में जाके ड्रेन कर देती है डक्ट जो है। और ड्यूडिनम में फिर ये जो बाइल है ये फैट्स को की इमल्सिफिकेशन करता है, उनके टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाता है और ताकि वो फिर डाइजेस्ट हो जाएं। फिर एंजाइम्स आते हैं पैंक्रियाज से और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बाइल बनाता है। बाइल के अलावा एक और प्रोटीन है अल्ब्यूमिन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, वो भी लीवर बनाता है। वो अल्ब्यूमिन क्या है? अल्ब्यूमिन एक्चुअली ब्लड वेसल्स जो हैं उसके अंदर ब्लड में ट्रेवल करती है और ये ब्लड में से फ्लूइड को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है ना, ये उसको लीक आउट नहीं होने देती अल्ब्यूमिन जो है। इस तरह और भी कुछ प्रोटीन है जैसे फिब्रिनोजेन है, ये भी लीवर बनाता है। अब फिब्रिनोजेन क्या है? ये भी ब्लड क्लॉटिंग करती है। इसकी फिर एक्टिव फॉर्म बनती है फिब्रिन और वो ब्लड को कोएगुलेट करती है। अगर कोई कट लग जाए तो वहां पे उसको बंद करना, उसको उसकी क्लॉटिंग करना, ये इसका काम है फिब्रिनोजेन का। तो इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये करता है। देयर आर 500 जॉब्स जो लिवर करता है। मैंने ये आपको मेन इंपॉर्टेंट इसके जॉब्स जो हैं, फंक्शंस, इसके रोल्स मैंने बताए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये वीडियो तो बहुत लंबी हो गई मगर मैंने इसको एक सीक्वेंस से स्टार्ट किया था ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप इसको सुने और आपको इसकी समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।